परमजीत कौर जी से मेरी बात हुई थी। उसको अटैक आ गया था बीपी बढ़ने के कारण। अब उनकी निगाह पहले दिन से बढ़नी शुरू हो गई थी। आज उनकी नज़र 100% हो गया, जो 1 मंथ हो गया। सर फर्क कब से देखने को मिल जाता है अगर किसी को आंखों की काला मोतिया की समस्या होगी तो? अगर किसी ने ठीक होना तो वेरी फर्स्ट डे उसका रिजल्ट मिल जाता है। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं पिंड बारन, जो कि पटियाला के पास पड़ता है, और यहां पर एक डॉक्टर विर्क हैं, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह विर्क, जो कि आंखों की हर एक समस्या का इलाज करते हैं। और यहां पर दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। और सर का एक बेहतरीन फार्मूला है, 20 मिनट का फार्मूला, जिसको डालने से केवल 20 मिनट में ही आंखों की रोशनी में फ़र्क देखने को मिल जाता है। आइए जानते हैं, पेशेंट से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको कितना फ़र्क पड़ा, कैसे ठीक हुए, क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे ठीक किया गया, क्या क्या परहेज बताए गए। चलिए बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅਟੈਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ डॉक्टर को दिखाया आपने? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਦਾਰੂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਨਕ ਵੀ ਲਾ ਦਈਦੀ, ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੀ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਧੀਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਸਭ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਦੀਆਂ? ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਜਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਲੈਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 58 ਸਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह विर्क, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाहूँगा, परमजीत कौर जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उनको अटैक आने के बाद आंखें उनकी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी और तीसरी बारी में अभी उनको दिखना शुरू हो गया, मतलब 100% उनको अब कहते दिखता है मेरे को। पहले मेरे को लेके आए थे, जब पहली बार आए थे तो लेके आए थे, तो उसके बारे में बता दीजिए आप। उसको अटैक आ गया था बीपी बढ़ने के कारण। अब
उनकी निगाह पहले दिन से बढ़नी शुरू हो गई थी। आज उनकी नज़र 100% हो गया, जो 1 मंथ हो गया उनको। अच्छा, 1 महीने में? हाँ, 1 मंथ में पूरी की पूरी होगी और पहले दिन बढ़नी शुरू हो गई थी। 20 मिनट वाला फॉर्मूला क्या है सर आपका? वही आयुर्वेदिक मेडिसिन के वो अर्क हैं, वही डालने से ठीक हो जाता है। जी। तो सर जब वो पहले दिन आए थे तब उनकी कंडीशन क्या थी और 20 मिनट वाला फॉर्मूला डालने के बाद उनकी कंडीशन क्या थी? मतलब कितना दिखना शुरू हो गया था उनको? जब आए थे 15-20% था उनकी विजन, और मेडिसिन डालने के बाद 70-80% हो गया, और आज 100% है उनका विजन। जी। दर्शकों आप का उनको मिले हो? जी, मैंने अभी बात करी है उनसे। ठीक है, उनसे बात करके देखना फिर कैसा है। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आँखों को घर पर ठीक करने के लिए क्या कोई घरेलू नुस्खा भी है? बिल्कुल, गाजर का जूस, पालक का रस, 1 गिलास गाजर का जूस, चौथा कप का चौथा हिस्सा आंवले का रस, जी। और पालक का रस चौथा हिस्सा कप का, ये दोनों सुबह शाम मिक्स करके पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। और अपनी हथेली का जो पहले वाला फिंगर है, इसके बीच वाला, इसको 50-60 बार सुबह, 50-60 बार शाम को दोनों हाथों की थैली पर दबाने से रोशनी बढ़ती है। और आँखों को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, और जहाँ से जहाँ हम पुड़पड़ियाँ बोलते हैं इसको, जहाँ टॉय से डलते हैं, उसको 50-60 बार सुबह और शाम करने से आँखों की रोशनी बरकरार रहती है और बढ़ती है। जी। सर फ़र्क कब से देखने को मिल जाता है अगर किसी को आँखों की काला मोतिया की समस्या होगी तो? अगर किसी ने ठीक होना तो वेरी फर्स्ट डे उसका रिजल्ट मिल जाता है। जी। जे कोई नहीं ठीक होने वाला वो फिर ठीक नहीं होगा। और 100% कब तक फ़र्क देखने को मिल जाएगा? ऐसे आम तौर पर लोग कहते हैं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और एलोपैथी डॉक्टर तो बोलते हैं कि ठीक होगा ही नहीं। कौन से पेशेंट की बात कर रहे हैं आप? वैसे जनरली आम तौर पर जब पेशेंट्स कितने टाइम में ठीक हो जाते हैं? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है जी। जैसे कोई ग्लूकोमा वाला हो सकता है, उसकी 100% विजन ना हो, ना बने, और जितनी बन सकती है और जितनी बन गई है वो लंबे समय तक बरकरार रह सकती है। और जो वैसे विजन लॉस हो जाता है, डाउन हो जाता है, मान लो जैसे नेचुरल तरीके से चश्मा लग जाता है, वो 100% हो सकता है वो भी। जैसे आप पिछली 1 मंथ हो गया, 5 लड़के भर्ती हुए हैं मिलिट्री में। जी। हाँ, वो उनका चश्मा लगा था, उनको जब मेडिकल कराने जाते हैं, उनकी एमएच डाल देते हैं। एक डॉक्टर एमएच डालता है कि इसकी विजन कम है, ये भर्ती नहीं हो सकता। और जब दूसरी बार उसका मेडिकल होता है, जब फिट करना होता है दूसरी बार, जिसका एमएच डला होता है, उसको अनफिट किए हुए लड़के को जब दूसरी बार मेडिकल होता है, वो 5 डॉक्टर उसको फिट करते हैं। और हमारे पिछले महीने 5 लड़के मिलिट्री में भर्ती हुए हैं। ठीक-ठीक लगा लो। 5 लड़के हमारे पास उसका प्रूफ है, जी। ठीक-ठीक लगा रहे हैं। और 7 आए थे, 2 तो उसको, एक को तो लेज़ी आई थी, वो ठीक ही नहीं हो सकता, जी। ठीक है? एक का विज़न ही 8 नंबर लगा हुआ था, वो भी ठीक नहीं हो सकता। और जो दूसरे से 3 नंबर, 4 नंबर, 2.5 नंबर जैसे इतने थे, किसी का आधा नंबर, वो फिट हो गए। जी। जैसे कि हम देखते हैं बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, फॉरेन के पेशेंट्स भी कई सारे आए हैं, कई सारे ठीक हुए हैं, वो भी 20 मिनट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप सब पेशेंट्स पे? बिल्कुल, सभी को एक जैसी फार्मूला एक ही है, और अलग-अलग उसका आगे डिवाइड करके मेडिसिन बनाई उसकी विज़न के अकॉर्डिंग। जी। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को, बहुत सियाने हैं हमारे दर्शक, वैसे ही आजकल दर्शक बहुत समझदार हैं। आजकल यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, और मेरी तो बेनती है उनको भी फ़ोन कम देखें, और बिना वजह कोई भी ऐप खोलकर सारा दिन मोबाइल पर, टीवी पर, एलईडी पर, एलसीडी पर ना बैठें, और अपनी नज़र को कम से कम लगाएँ, जहाँ जो आपकी नज़र लंबे समय तक बरकरार रहे। जी। आपने कोई स्पेसिफिक परहेज भी बताए थे उनको निगाह ठीक करने के लिए? हाँ, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, और जो काम है वो तो, जैसे कोई जॉब करता है, जहाँ पढ़ाई की स्टडी करता है, वो तो करना ही पड़ेगा, और कोई ज़्यादा परहेज भी नहीं है। लेकिन मोबाइल का अति ज़रूरी सभी को करना चाहिए, जिसके साथ हमारा विज़न लॉस होता है। और विज़न जितना कम देखेंगे मोबाइल, जितने एलसीडी, जहाँ अपनी विज़न को जितना भी काम, जैसे आमदन अठन्नी और खर्चा रुपए वाली बात हो जाए, तो फिर ठीक कहाँ से होगा? इसलिए अपनी विज़न जितनी कम यूज़ करोगे बिना मतलब से, उतना लंबे समय तक ठीक रहोगे। कोलेस्ट्रॉल और बीपी का सीधा प्रभाव आँखों पे क्यों पड़ता है?
जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अपना लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है, उसका आंखों पर जाकर स्वेलिंग आ जाती है। वो हमें कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो आंखें ठीक नहीं हो सकती अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे LDL HDL ये जितने भी बढ़ेंगे उतना ही प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए इनको नॉर्मल रखें, और इसको नॉर्मल रखने के लिए अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना ये 4 चीज़ें बराबर मात्रा, और इसके टेस्ट के लिए सेंधा नमक, हरी मिर्च और टमाटर डालकर इसकी चटनी बनाकर सुबह शाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हमारी सेहत पर, और कभी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंखों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर किन किन आंखों की समस्याओं का इलाज किया जाता है? आंखों की सिर्फ कैटरेक्ट के बिना हर समस्या को हम देखते हैं। ठीक होना ना होना है तो ऊपर वाले के हाथ में। कुछ पेशेंट ठीक नहीं भी होते, नहीं होने वाले होते, जिसकी ये लगा लो कि पीछे से ऑप्टिक नर्व बिल्कुल डैमेज हो जावे, डेड हो जावे, वो नहीं हो सकता, लेकिन तकरीबन तकरीबन ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मेहरबानी। अब हम माता जी के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे पेशेंट के बारे में बात करते हैं। अमृतसर के थे माता जी और उनको अटैक आया था, उसके बाद वो मतलब ठीक हो गए हैं, उनकी आंखें बिल्कुल ही चली गई थी, अब वो ठीक हो चुके हैं। उनके बारे में बता दीजिए आप। जी, जब हमारे पास आए थे अटैक होने के बाद उनकी आँखें लगभग दिखना बंद हो गया था। उनको भी ऐसे ही जैसे उनके गार्डियन से पकड़ के लाते थे, ठीक है? तो धीरे-धीरे हमने चेक किया, उनकी पास्ट हिस्ट्री ली, उनके थॉरली चेकअप किया, तो हमें लगा वो अटैक की वजह से उनकी आई साइट पूरी डैमेज हो चुकी है। फिर हमने उसके डायग्नोस के मुताबिक अपनी जो सूटेबल दवाइयाँ डालते हैं और खाने वाली देते हैं, और उनके अटैक वाले कंट्रोल करने की मेडिसिन साथ में चल के आज वो पूरी तरह से ठीक है, और आज मेरे ख्याल से वो लड्डू बांट के गए हैं। पहले तो वो बोल रहे थे कि मैं डिपेंडेंट थी, अब मैं खुद ही आ रही हूँ, तो मतलब भगवान के रूप हैं डॉक्टर साहब, ऐसा बोला उन्होंने। जी, वैसे तो जो अच्छा डॉक्टर है एक वो भगवान का रूप ही माना जाता है, ठीक है? जो डॉक्टर अपने फील्ड में मास्टर है, ठीक है? और जो निस्वार्थ सेवा करता है वो तो भगवान का रूप माना ही जाता है। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने उनकी नब्ज पकड़ के उनको दवाई बीमारी के नब्ज पकड़ के उनको सूटेबल दवाई दी, तो वो ठीक हो गए, तो नेचुरली उनके लिए तो वो भगवान ही है। डॉक्टर साहब का 20 मिनट वाला फॉर्मूला क्या है? मतलब कई सारे पेशेंट्स की हमने चर्चा करी है, कई सारे पहले भी हम चर्चा करके गए थे, सारे यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब का 20 मिनट वाला फॉर्मूला है, आंखों में डालते हैं, 20 मिनट रुकते हैं और फिर ठीक हो जाती है आंखें। बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है पहली बारी से ही, वो क्या है? ऐसा है भी, हम लोग जब पेशेंट आता है तो उसको चेकअप करते हैं, ठीक है जी? थोड़े मिनट तो चेकअप और डायग्नोस करने में लग जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब के पास जब जाता है, डॉक्टर साहब अपनी मशीन से उसको चेक करते हैं, तो उसके मुताबिक उसको सूटेबल जो मेडिसिन डालते हैं, तो वो मेडिसिन डालने के बाद उसका जो आइज़ के ऊपर प्रभाव है, वो 10 से 15 मिनट लगते हैं उसको। तो जब 10-15 मिनट बाद हम दोबारा उसको आइज़ चेक करते हैं, तो उसकी कहीं न कहीं वो जो बीमारी लेके आता है, वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाती है। जैसे दूर की निगाह, नज़दीक की निगाह, उसको काफ़ी हद तक दिखने लग जाता है, और बीमारी के जो आया है थोड़ा बहुत उसे फ़र्क लगने लग जाता है। तो इस सारे कारोबार को 20 मिनट लगते हैं, तब से हम 20 मिनट वाले डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने पेशेंट से बात करी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब का जो 20 मिनट वाला फॉर्मूला है वो कितना ज़्यादा कारगर है, और उनकी निगाहें उसी 20 मिनट के फॉर्मूले से ठीक हुई हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।